Good morning. So this is final year batch. So today's our topic is ovulation induction. So we'll start from a little backwards. Attendance होगी? Any one of you please tell me what is menstrual cycle? What are the phases of menstrual cycle? One of you please tell me what is ovulation? What is menstrual cycle? What are the phases of menstrual cycle? Anyone? Gynae तो पढ़ रहे हो ना? Obstetrics and gynae. You are in final semester, right? बताओ कौन बताएगा? बेटा बताओ, आप बताओ. Just tell me what is menstrual cycle? What are the phases of menstrual cycle? So first is follicular or proliferative. Follicular means what? In this phase, the follicle is developing, so it is called follicular phase in respect of ovary, and proliferative in respect of endometrium. So they are basically, a menstrual cycle has got two parts, ovarian cycle and endometrial cycle, right? So ovarian cycle के respect में what we call follicular phase and proliferative phase, है ना? Endometrium proliferate कर रही है और follicle develop हो रहा है. So it is follicular or proliferative, and in the second phase is luteal phase. So why luteal phase? Because ovulation has been done and now corpus luteum has developed. So it is luteal phase, and in respect of endometrium, what is? It is secretory phase. So ovulation हो गया है, now progesterone has come, so proliferative से endometrium will be in secretory phase. तो ये तो इतना तो you know that. So what is ovulation? Anyone? Ovulation? बताओ, बताओ, आप बताओ बेटा. Stand up. What is ovulation? So why we are studying ovulation induction in short? So ovulation is a natural process. Mid cycle में एक mature ova release होता है, and if it is it fertilizes with sperm, then pregnancy occurs. ठीक है? So why we are studying ovulation? Ovulation naturally नहीं हो रहा है ना? In anovulatory cases में we have to induce ovulation. So basically we are studying the cases in which naturally ovulation doesn't occur. So we have to induce ovulation. So what will the cases in which the ovulation will not occur? कोई भी बताओ please. What are the causes of anovulation? खड़े होके बताओ बेटा, कौन बताए? 3 categories WHO की classification of anovulation. ये तो आपका क्वेश्चन आता है ना. What are the common causes of anovulation? बताओ, आप बताओ बेटा, बताओ, खड़े हो जाओ. आप ऐसे ऐसे कर रहे हो ना. Tell me. Stand up, stand up. आपको ही कह रही हूँ, आपको ही कहना. चश्मे वाली बच्ची, खड़े हो जाओ. हाँ, yes you. Causes of anovulation. WHO का classification बताओ. So for ovulation, सबसे पहले कहाँ से आएंगे हार्मोन्स? HPO एक्सिस, you know all. हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस. ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से अगर हार्मोन नहीं आएंगे तो क्या होगा? हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म. सो दिस इज WHO फर्स्ट कैटेगरी. ओके, बैठ जाओ. सेकेंड इज नॉर्मो, जो आप लोग बोल रहे हो PCO. हार्मोन्स तो आ रहे हैं बट ओवेरियन लेवल पे कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हार्मोन्स आते हुए भी एनोवुलेशन हो रहा है. सो मोस्ट कॉमन इज PCO, सेकेंड कैटेगरी. एंड थर्ड इज व्हाट? एनीवन? बताओ बताओ. आप लोग बेटा इतना पीछे बैठे हो, एकदम ऐसे लग रहा है कि जस्ट फॉर खाना पूर्ति आए हो. आगे आ जाओ. वो तीनों बच्चे इधर, बहुत सारी जगह. आ जाओ, आ जाओ. कम ऑन स्टैंड अप. आ जाओ, जल्दी आ जाओ. हाँ, आप तीनों को ही कह रही हूँ जो लास्ट बैठे हैं, और तो कोई आपके पीछे तो कोई नहीं है, तो आप तीनों को ही कह रही हूँ. कम ऑन फास्ट. आओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ. आओ जल्दी. कम ऑन फास्ट. नहीं नहीं नहीं, आपको तो कह ही नहीं रही मैं, आपके पीछे वालों को कह रही हूँ. अगर आगे नहीं आना है तो बाहर चले जाओ बेटा. जल्दी, कम ऑन, बी फास्ट, स्टैंड अप. सीनियर्स की प्रॉक्सी लगाने आए हो क्या? सेकेंड ईयर में हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, क्या हो गया? खड़े हो जाओ जल्दी, कम ऑन. बाकी क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है. हाँ जल्दी आओ, आगे आओ. कम ऑन, आगे. इधर 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 बोला है मैंने, उधर बाजू में नहीं जाना है. इधर आओ, इधर आओ जल्दी. और नहीं तो क्लास के बाहर भेजूंगी मैं. हाँ,
So third category is what? Hyper-hypo. So hypothalamus is and pituitary is producing hormone, but ovarian level पे again there is hypogonadism. ठीक है, उसके क्या causes होते हैं? ओवेरियन फेलियर. ओवेरियन फेलियर किस केसेस में होगा? प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर. ओके, और अनदर कॉजेस? प्राइमरी ओवेरियन फेलियर है ना, क्रोमोसोमल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है, एक्स हो है तो देयर इज एन ओवेरियन फेलियर. तो नाउ वी स्टडी द ओव्यूलेशन इंडक्शन. तो ब्रॉडली विल स्टडी द सेकेंड कैटेगरी. फर्स्ट कैटेगरी में भी ओव्यूलेशन हो सकता है क्योंकि ऊपर से ही हार्मोन नहीं आ रहे, तो वी कैन गिव गोनाडोट्रोपिन एंड वी कैन इंड्यूस ओव्यूलेशन. ठीक है, तो ओव्यूलेशन इंडक्शन का रैशनल क्या हुआ? तो नेचुरल ओव्यूलेशन इज नॉट अकरिंग, या फिर सेकंड कॉज है ओव्यूलेशन इज अकरिंग बट प्रेगनेंसी इज नॉट अकरिंग. ठीक है, सो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, ओव्यूलेशन हो रहा है, मेल पार्टनर इज ओके बट स्टिल देयर इज नो प्रेगनेंसी. सो ovulation induction is in cases of anovulation and second is unexplained infertility. And third part is if we want to do ART procedures. What are ART procedures? Have you heard about it? ART procedures में क्या क्या आता है? IUI और IVF. If due to any other causes of infertility we want to go for ART procedures like intrauterine insemination or IVF, then we have to stimulate ovulation. ठीक है, तो ओव्यूलेशन इंडक्शन के दो मेथड्स हैं. एक ओव्यूलेशन इंडक्शन, नॉर्मल ओव्यूलेशन इंडक्शन, जिसमें हम चाहेंगे कि वी वांट ओनली वन फॉलिकल टू डेवलप. एनओव्यूलेटरी केसेस में एक भी फॉलिकल नहीं हो रहा है, तो वी विल गिव स्मॉल डोजेस ऑफ ओरल ओव्यूलोजन ताकि नॉर्मल नेचुरल साइकिल की तरह वन फॉलिकल डेवलप हो और सिंगलटन प्रेगनेंसी हो जाए. दूसरा होता है ओव्यूलेशन इंडक्शन जिसको हम कहते हैं सुप्रा ओव्यूलेशन या कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपरस्टिम. बेटा आप जो वो पीछे बैठे हो एकदम कॉर्नर में, हाँ आपको समझ में आ गया, आपको कह रही हूँ खड़े हो जाओ जल्दी. हाँ आप जो पीछे देख रहे हो वही, खड़े हो जाओ, कम ऑन स्टैंड अप. हाँ क्या नाम है बेटा? हाँ क्या बता रही थी अभी मैं? जय नाम है? जय आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी आओ, कम ऑन फास्ट, कम ऑन बी फास्ट. फोन जो चला रहा है मेरे को दिख रहा है, यहाँ से मेरे को सारे बच्चे दिख रहे हैं जो ऐसे करके बैठा है, फोन चला रहा है. आई कैन सी यू. चैट जीपीटी से पढ़ लो, जो मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ लो ना, थोड़ा तो कुछ लिख लोगे. बताओ क्या डिस्कस कर रहे थे? व्हाट वी वर डिस्कसिंग, टेल मी बेटा. ओव्यूलेशन डिस्कस करते. वेरी गुड. ओव्यूलेशन में क्या डिस्कस कर रहे थे? व्हाई वी डू ओव्यूलेशन इंडक्शन. ओव्यूलेशन तो हो ही रहा है तो फिर क्यों करेंगे ओव्यूलेशन इंडक्शन? ऐसे ही पढ़ाने के लिए. सो व्हाट, व्हाई वी आर डूइंग, व्हाई वी वांट टू इंड्यूस ओव्यूलेशन. तो सिर्फ रेगुलर मेंसेस नहीं आ रहा है इसलिए ओव्यूलेशन इंडक्शन कर दो. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओव्यूलेशन इंडक्शन? रेगुलर मेंसेस नहीं आ रहे हैं तो वी कैन गिव ओसी पिल्स ऑल्सो. अगर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, main purpose is not achieving fertility, then we will not do ovulation induction. Then we can regularize the menses. If our only purpose is regularization of menstrual cycle, then we can regularize it with another things like OCPs. Most common thing is OCPs. ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो मेन पर्पज है is to achieve ovulation and to achieve pregnancy. Okay, so our main aim is ovulation induction is pregnancy. तो दो तरीके से बताया. एक नेचुरल ओव्यूलेशन इंडक्शन हम करेंगे जिसमें हम ओरल ओव्यूलोजन देंगे. तो वी वांट ओनली वन मैच्योर फॉलिकल टू डेवलप एंड टू अचीव अ सिंगलटन प्रेगनेंसी. एंड अनदर सेकंड पार्ट इज वी वांट टू कंबाइन इट विथ ART प्रोसीजर्स लाइक IUI और IVF. तो इसमें हम क्या करेंगे? कंट्रोल्ड ओव्यूलेशन हाइपर स्टिमुलेशन. Why it is called controlled ovarian hyperstimulation? Because we are developing more than one egg. Supraphysiological levels of gonadotropin is achieved, but we are doing it in a controlled way. अगर हम बहुत ज्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? What is the most common side effect of IVF? Anybody? अरे अटेंडेंस तो दे देना, बताओ. What is the most common side? तुमसे पूछेंगे वाइवा में, फिर तुम इधर उधर झांकोगे. What is the most common effect of IVF? Side effect of IVF? Controlled ovarian hyperstimulation.
name itself says hyperstimulation. Anybody has heard about OHSS, ovarian hyperstimulation syndrome? So it is an entity जिसमें हम we are doing hyperstimulation but it occurs in a very exponential way. तो उसमें क्या होता है, थर्ड स्पेस में सीक्रेशंस इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है. सो वी हैव टू एडमिट द पेशेंट. सो इट इज अ साइड इफेक्ट. आपके लेवल पे आपको इतना पता होना चाहिए कि कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, बताओ. बेटा तुम तो आगे ही बैठ के बिल्कुल ही मोबाइल चला रहे हो. खड़े हो जाओ आप. थर्ड, हाँ थर्ड, खड़े हो जाओ. आपको ही कह रही हूँ, फोन रखो साइड में. आपको ही कह रही हूँ, आप पीछे क्यों देख रहे हो. बताओ मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट. हाँ बोलो आप क्या बताओ. खड़े हो जाओ, बताओ व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईवीएफ. टेल मी. बोलो. अभी बताया ना मैंने. उसको क्या कहते हैं. देखो आप सुन ही नहीं रहे हो, बिल्कुल ही आगे बैठ के नहीं सुन रहे हो. ऐसे तो मत करो. हाँ, एडमिट. व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी. वाइवा में पूछेंगे ना, व्हाट आर द कॉमन केसेस ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी. का आपका केस आ गया, मेजर केस आ गया, तो क्या बोलोगे. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, बताओ. पीसीओएस यार अब बोले जा रहे हो आप लोग. पीसीओ से सीधा एशोमैन. कोई ऐसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ ऐसे होता है क्या. इतना वेग से आंसर मत दो. एक मेथड होता है, एक ओव्यूलेशन के लेवल पे, एंडोमेट्रियम के लेवल पे क्या क्या चीजें चाहिए होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए. थोड़ा पढ़ोगे फाइनल ईयर में तो आगे पता चलेगा ना कैसे क्या करना है लाइफ में. ऐसे इतना टाइम पास क्यों कर रहे हो आप लोग. क्या क्या चीजें जिसको आता है आप बताओ बेटा. क्या होता है प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए. व्हाट वी वांट फर्स्ट, व्हाट वी आर डिस्कसिंग, अ नॉर्मल ओव्यूलेशन, देन अ फंक्शनल फैलोपियन ट्यूब, राइट. फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में. सो फैलोपियन ट्यूब शुड बी फंक्शनल. सो फंक्शनल फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर आगे क्या होगा, इम्प्लांटेशन. सो इम्प्लांटेशन के लिए इट शुड बी फंक्शनल एंडोमेट्रियम. So 3 things we require for a successful achieving for successful pregnancy. What? Ovulation. हो गया. तनुज जी अटेंडेंस दे देना, आप यहाँ पे सबमिट कर देना. आप चले जाओ. थैंक यू. फंक्शन, ठीक है. तो 3 लेवल पे होगा. ओव्यूलेटरी डिसफंक्शंस, कभी भी क्वेश्चन का आंसर बोले तो आप 3 लेवल पे बोलोगे. ओव्यूलेटरी डिसफंक्शंस, उसमें आ गया पीसीओ या हाइपो जो अभी हमने 3 ठीक है कैटेगरीज डिस्कस करी. और सेकंड में आ जाएगा ट्यूबल फैक्टर्स ऑफ इनफर्टिलिटी. बताओ ट्यूबल फैक्टर्स ऑफ इनफर्टिलिटी बताओ आप. वो सेकंड स्पेक्स वाले खड़े हो जाओ जल्दी. खड़े हो जाओ. हाँ आपको ही कह रही हूँ. क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, बताओ. हाँ, व्हाट आर द ट्यूबल फैक्टर्स ऑफ इनफर्टिलिटी. endometriosis, maybe partially you are correct. So endometriosis per se will not block the tubes, but it can cause tubo-ovarian relationship disturbance, वो कर देगा. So maybe you are partially correct. लेकिन ट्यूबल फैक्टर बोलते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बताओ. सॉरी, हाँ, ट्यूबल मोटिलिटी किसमें डिस्टर्ब होगी, बताओ. सॉरी, क्या बेटा, क्या बोल रहे हो. कार्टेगनर सिंड्रोम, दैट इज मोर कॉमन इन मेल्स, राइट. सो वी आर डिस्कसिंग फीमेल, जस्ट फीमेल पार्ट. ओके, कार्टेगनर सिंड्रोम इज कॉमन. इसमें पढ़ के बता दिया क्या. सो ट्यूब्स में क्या होगा, इन्फेक्शन. सो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, सबसे पहले आपको ये आंसर आना चाहिए. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी इज व्हाट, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज. उससे क्या होता है, जो नॉर्मल सीलिया होते हैं. तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी. दे आर नॉर्मल सीलियरी फंक्शन ऑफ ट्यूब्स. वो क्या करती है, ओव्यूलेशन हुआ, एग को टुवर्ड्स यूट्रस धकेलेंगे. सीलिया ऐसे ऐसे प्रोपेलेशन मूवमेंट करेंगे. हीमोटैक्सिस के थ्रू क्या करेंगे, एग को पकड़ेंगे. फिम्ब्रियल एंड्स जो होते हैं ना, तो पता होना चाहिए आपको ऐसे, ठीक है. फिम्ब्रियल एंड्स होते हैं, इट्स लाइक अ फ्लावर. सो इट विल पिक द oocyte जो ओव्यूलेशन हुआ है, फिर वो प्रोपेल करेगी टुवर्ड्स यूट्रस. तो कहीं एम्पुला में जाके oocyte वेट करेगा. जो मैच्योर एग है वो कितने टाइम तक वेट करता है,
24 to 48 आवर्स, राइट। सो 24 to 48 आवर्स तक वो वेट करेगा। तो जो इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं, वी विल एम कि जो ओव्यूलेशन है उसके पहले ही इंसेमिनेशन हो जाए, ठीक है, ताकि जो oocyte है वो आए उसके पहले ही fallopian tubes इज लोडेड विथ sperm। सो दिस इज अवर मेन एम, है ना। जो बहुत एकदम लास्ट लाइन में सिर पे हाथ रख के बैठे हैं, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जल्दी। अरे इतना डिसइंटरेस्ट क्यों शो कर रहे हो? क्या आपको आता है क्या सारा कुछ ही? ठीक है, तो देयर इज अ नॉर्मल सिलियरी एक्शन। हाँ बताओ, आप बताओ फिर आगे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ पे होता है बताओ बेटा। अभी तो ओव्यूलेशन इंडक्शन पे तो पहुंच ही नहीं पाया, आपको तो आता ही नहीं, पहले की कहानी ही नहीं पता। फिर हाँ, फेलोपियन ट्यूब, वेरी गुड। फिर व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब? हाँ तेज बोलो बेटा। इनफंडिबुलम, इस्थमस, और फिर आगे आगे भी कुछ होता है क्या? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फिम्ब्रिया यू आर मिसिंग, राइट? हाँ व्हाट? इंटरस्टिशियम और फिम्ब्रिया तो बहुत दूर दूर हो गए ना। बताओ यार, फिम्ब्रिया के पार्ट्स, फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स तो आने चाहिए ना। पढ़ लेना जाके ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए, राइट। सो फिम्ब्रिया इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर एम्पुला में वेट करेगा oocyte, स्पर्म्स के साथ वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। फिर जो अपोजिट मूवमेंट होगा, जो सिलियरी मूवमेंट होगा, वो कैसे होगा? स्पर्म्स को टुवर्ड्स फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। स्पर्म सर्विक्स के थ्रू कैविटी में आए, यूट्राइन कैविटी में, देन इट विल प्रोपेल द स्पर्म्स टुवर्ड्स oocyte जो वहां पे वेट कर रहा है, वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ। फिर अगेन अपोजिट मूवमेंट। तो सिलियरी मूवमेंट जो फेलोपियन ट्यूब में, दैट इज वेरी फाइन मूवमेंट। तो उस मूवमेंट के लिए द फंक्शन शुड बी इंटैक्ट। तो कोई भी थोड़ा सा इंफेक्शन, म्यूकस, उसके कारण जो फिम्ब्रियल जो फेलोपियन ट्यूब की फंक्शन डिस्टर्ब हो जाती है, तो ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी। तो ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी PID, एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन इन इंडिया स्पेशली जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना, pelvic inflammatory disease and genital tuberculosis. Third is maybe you can say endometriosis. उसमें बेसिकली जो ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप पर से ट्यूब्स ब्लॉक नहीं होती उसमें, बट द नॉर्मल ट्यूबो, जैसे जो फिम्ब्रियल से ट्यूब उठा रहा है ना, फिम्ब्रिया और जो ओवरी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है जो नॉर्मल, बहुत नींद आ रही है बेटा, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है एंडोमेट्रियोसिस में। और भी बाकी बहुत सारे एडिशंस के कॉजेज होते हैं, उसमें ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। सो वी नीड अब नाउ एंडोमेट्रियम। सो व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ एंडोमेट्रियल इनफर्टिलिटी? एंडोमेट्रियल कॉजेज अगेन इट इज PID, ठीक है। PID में क्या होगा? PID में फिर से एंडोमेट्रियम जो होगा, उसकी जो बेड है जहां पे इम्प्लांटेशन होगा, वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। सो नाउ विल डिस्कस ओव्यूलेशन इंडक्शन। So what are the methods of ovulation induction? This we have discussed. These are 2-3 categories of an ovulation: hypo, PCOS, and third is ovarian failure. So what are the methods of ovulation induction? So broadly जो आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए, 2 methods: oral ovulation, oral ovulogens। उसमें क्या क्या आता है बताओ? क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट कौन सी कैटेगरी में आती है? फार्मा में पढ़ा होगा। सर्म, व्हाट इज सर्म? सो ये क्या करता है? क्लोमिफेन सिट्रेट क्या करता है बताओ? व्हाट इट डज? सेंट्रली एक्ट करता है। सो इट ब्लॉक्स द नेगेटिव फीडबैक। एक नेगेटिव फीडबैक होता है, नीचे से ईस्ट्रोजन बन रहा है, ईस्ट्रोजन जाके उधर हाइपोथैलेमस पे बोलेगा कि भाई मैं तो बन गया हूं, तो अब FSH LH मत रिलीज कर। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। So it blocks the negative feedback centrally acting है। तो ऊपर से हाइपोथैलेमस को लगेगा कि ईस्ट्रोजन नहीं आ रहा, तो वो FSH LH ज्यादा करेगा, ठीक है, सुप्रा फिजियोलॉजिकल लेवल। तो उससे अगर FSH LH पहले कम था तो FSH, बेटा आप एक बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पानी बॉटल लाए हो क्या? पानी दे दो इसको, बहुत नींद आ रही, परेशान है बच्चा हमारा। खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? स्टैंड अप। खड़े हो जाओ बेटा। क्या हो गया? ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं? आपको ही कह रही हूँ, दूर दूर क्यों देख रहे हो? खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। आपको ही कह रही हूँ मैं, आपको सामने दिख रहा है, सामने एकदम दिख रहा है, दिस वाइट शर्ट। हाँ खड़े हो जाओ। हाँ बताओ, मोस्ट कॉमन ड्रग ओरल ओव्यूलेशन का नाम बताओ।
हाँ, क्लोमिफेन सिट्रेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ, क्या करता है? किसकी नेगेटिव फीडबैक को? अच्छा, फिर क्या होगा? तो नेगेटिव फीडबैक, सो मत बेटा प्लीज, नेगेटिव फीडबैक को इनहिबिट करके एफएसएच एलएच का लेवल बढ़ा देता है, तो इट विल कॉज ओव्यूलेशन एट द लेवल ऑफ ओवरी। ठीक है, तो फर्स्ट इज सर्म, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए सर्म। सेकंड इज एरोमेटेज इनहिबिटर, लेट्रोजोल। सो करंट चॉइस ऑफ ओव्यूलेशन इंडक्शन इन पीसीओ पेशेंट इज लेट्रोजोल। व्हाट इज लेट्रोजोल? इट एक्ट्स पेरिफेरली। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, क्लोमिफेन जो है वो सेंट्रली एक्ट करता है एस्ट्रोजन के नेगेटिव फीडबैक को, और लेट्रोजोल कैसे एक्ट करता है? पेरिफेरल एक्शन से। ये भी एस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक ब्लॉक करेगा, एंड अगेन इट इंक्रीजेस एफएसएच एलएच। अगर वी विल कंपेयर लेट्रोजोल वर्सेस क्लोमिफेन, तो विच इज बेटर? लेट्रोजोल। वाई? बिकॉज इट विल कॉज मोनोफॉलिकुलर डेवलपमेंट। सो अभी हमारा एम है मोनोफॉलिकुलर डेवलपमेंट, ताकि वी विल अचीव अ सिंगलटन हेल्दी प्रेगनेंसी। एंड अगेन, since it is a sperm, it has a negative feedback on endometrium and cervix. ठीक है, so it has a negative action on endometrium और cervix। तो endometrium की लाइनिंग जितनी बेटर होनी चाहिए, जितना proliferation होना चाहिए, वहां पे वो फीडबैक को ब्लॉक कर देगा, तो एंडोमेट्रियम थिनिंग और सर्वाइकल म्यूकस थिनिंग ये होगी, तो प्रेगनेंसी की जो पॉजिटिव रेट्स हैं वो बेटर नहीं होंगी। सो लेट्रोजोल इज बेटर। वाई? बिकॉज इट अचीव्स मोनोफॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड it has proliferative action on endometrium, correct? So oral ovulations में क्या आया? SERM and aromatase inhibitor। ठीक है, अब इसकी डोजेज और ये क्या है आगे तुम लोग जाके पढ़ लेना, या विल डिस्कस। ठीक है, नाउ सेकंड इज गोनाडोट्रोपिन। व्हाट इज गोनाडोट्रोपिन? एनीवन? So gonadotropin, we have two options. We can use FSH, follicular stimulating hormone. It comes in two preparations. ये आपको पता होना चाहिए, आपके वाइवा में FSH के two preparations में आता है। एक होता है यूरिनरी, ठीक है, और एक आता है रिकम्बिनेंट। यूरिनरी किससे? यूरिनरी जो मेनोपोजल फीमेल्स होती है उनमें से वो निकाल के बनाते हैं। ठीक है, तो उसका बैच टू बैच वेरिएबिलिटी काफी आती है, बट इट इज वेरी चीपर। ठीक है, तो इफ यू आर यूजिंग ओव्यूलेशन इंडक्शन फॉर एन आईयूआई साइकिल, ये तो बेसिक तो ये पता है ना कि आईवीएफ इज एक्सपेंसिव एंड आईयूआई इज लाइक लेस एक्सपेंसिव, सो वी हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। ठीक है, if we are using gonadotropins in an intrauterine insemination cycle, then we will prefer urinary FSH, that is cheaper. But if we are using IVF, then we'll prefer recombinant. Recombinant FSH is prepared artificially, so the batch to batch variability is less, so we will get consistency कि आपने 150 दिया है तो 150 की तरह ही behave करेगा, right? So gonadotropins consist of pure FSH, and HMG is basically combination of, so menopausal female में क्या होता है, FSH LH बढ़ जाता है और वो सीक्रेट होता है, so FSH LH दोनों उससे सीक्रेट होते हैं, and we use it as a ovulation induction। ठीक है, तो HMG is basically combination of FSH and LH, but it is though more cheaper than FSH। ठीक है, so we have three drugs: oral ovulagins and gonadotropins। Gonadotropins comes in injectable form, तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? इंजेक्टेबल फॉर्म में आएगा, इट इज मोर एक्सपेंसिव। एंड थर्ड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो आपको आपके लेवल पे पता होना चाहिए वो क्या होगा? ये एक से ज्यादा ओव्यूलेशन करेगा, मोर नंबर ऑफ एग्स विल बी रिलीज। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? अभी हमने डिस्कस किया था, मोर नंबर ऑफ oocytes रिलीज सुप्रा फिजियोलॉजिकल लेवल पे होगा तो क्या होगा? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट वी डिस्कस्ड? OHSS का रिस्क रहेगा। तो कोई भी पेशेंट अगर हम उसको गोनाडोट्रोपिन से स्टिमुलेट कर रहे हैं, देन वील हैव टू मॉनिटर इट। मॉनिटर कैसे करेंगे ओव्यूलेशन इंडक्शन? हाउ वी विल मॉनिटर? कोई भी पेशेंट आएगा, आपको ये दिमाग में होना चाहिए ओव्यूलेशन इंडक्शन कैसे कर रहे हैं। डे 2 से वी विल स्टार्ट द ओव्यूलेशन इंडक्शन। ओरल ओव्यूलेशंस जनरली वी गिव फ्रॉम डे 2 to day 3 ऑफ मेंसेस। फर्स्ट वी विल डू अ बेसलाइन स्कैन, ठीक है, ट्रांस वजाइनल बेसलाइन स्कैन विल रूल आउट एनी सिस्ट और एनी इन्फेक्शन, करेक्ट। बेसलाइन अगर हमें अल्ट्रासाउंड ठीक मिला, देन विल स्टार्ट विथ ओव्यूलेशन इंडक्शन। जनरली इट इज गिवन 5 to 7 days, then we will again call the patient for to see कि ovulation induction से
ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। बट इफ you are combining it with gonadotropin, so we have to give 2 or 3 days injection, and then we have to call the patient more frequently to see कि ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं, कितने फॉलिकल्स बन रहे हैं, और पेशेंट OHSS में तो नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। So clomiphene citrate we have discussed, this is SERM and it can be, अब oral ovulation हमने maximum we can try in 6 to 10 cycles, ठीक है। कोई भी पेशेंट इनफर्टिलिटी की आ रही है, ऐसा नहीं है कि एक साइकिल में ओवुलेशन हो गया, सेकंड में हो गया तो आप देते ही चले जाओ, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। सो RCOG recommends कि मैक्सिमम यू कैन ट्राई फॉर 6 साइकिल्स। ओरल ओवुलेशन से नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू एस्केलेट द थिंग्स, यू कैन do it with gonadotropin. You have to rule out other causes of infertility. If it is not happening, then you have to go for IVF. Correct? आ गया समझ में? क्लियर हो गया? So clomiphene citrate. So they are basically two entities: clomiphene citrate resistance and clomiphene failure. Resistance is what you are giving the patient 150 milligram 5 days 3 cycle के लिए आपने दी, फिर भी ovulation achieve नहीं हुआ। क्या होता है, पेशेंट का जो नॉर्मल PCO वाले पेशेंट्स में जो लोकल ओवेरियन हार्मोन जो होता है ना, वो एंड्रोजेनिक एनवायरनमेंट होता है, तो लो डोज से कई बार वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। सो इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंट केस। तो इसमें भी व्हाट वी हैव टू डू, आइदर वी हैव टू स्विच द ड्रग और वी हैव टू कंबाइन इट विथ HMG, ठीक है। ये क्लियर हो गया? सो दे आर टू एंटिटीज, क्लोमिफेन सिट्रेट रेजिस्टेंस एंड अगेन दैट इज द अनदर थिंग इज CC फेलियर। ओवुलेशन इज अकरिंग बट स्टिल प्रेगनेंसी, हमारा मेन एम इज प्रेगनेंसी। सो ओवुलेशन तो हो रहा है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई, तो दोनों में हमें देखना पड़ेगा कि वाई प्रेगनेंसी इज नॉट अचीविंग। फर्स्ट में तो चलो हमें समझ में आ रहा है कि ओवुलेशन नहीं हो रहा, सेकंड में तो वी आर गेटिंग ओवुलेशन बट स्टिल देयर इज नो प्रेगनेंसी, देन वी हैव टू रूल आउट अदर कॉजेज। अदर कॉजेज में क्या आ गया, वी हैव टू रूल आउट ट्यूबल फैक्टर, राइट। तो ट्यूबल फैक्टर को कैसे रूल आउट करेंगे, हाउ वी विल रूल आउट ट्यूबल फैक्टर, बताओ बेटा। फर्स्ट थिंग एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो पेशेंट के पीरियड्स का फ्लो ठीक होगा। यू विल आस्क कि पीरियड्स का फ्लो कैसा है, बहुत ज्यादा तो नहीं है। इफ इट इज एसोसिएटेड विद क्लॉट्स और एक्सेसिव ब्लीडिंग जो कि पेशेंट को बॉदर करी, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग नहीं है, नॉर्मल क्लॉट्स, नॉर्मल फ्लो आ रहा है, देन यू आर रेस्ट अश्योर्ड कि मे बी एंडोमेट्रियम तो ठीक होगा। सेकेंड जो गोल्ड स्टैंडर्ड है जिससे हम एंडोमेट्रियल असेसमेंट करते हैं, दैट इज बाय अल्ट्रासाउंड, transvaginal ultrasound, in which we can see the endometrial pattern thickness. So what is the endometrial pattern we expect before ovulation? Proliferative phase में that will be trilaminar endometrium, ठीक है। ये याद रखना आपको, ये टर्म trilaminar endometrium 3 लेयर्स में होगी, ठीक है। आज जाके फोटो देखना, AI पे आ जाएगा। So we'll see trilaminar endometrium, we'll see the pattern, thickness and third thing is vascularity, है ना। वेस्कुलरिटी इसकी स्कोरिंग होती है, आपको इतना डिटेल में जाने के लिए जरूरत नहीं है, बट द वेस्कुलरिटी शुड बी एडिक्वेट, द पैटर्न शुड बी एडिक्वेट एंड थर्ड थिंग इज थिकनेस। सो वी हैव टू इवैल्यूएट 3 थिंग्स, ठीक है। तो ओवुलेशन इंडक्शन ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ओवुलेशन इंडक्शन कर दिया, विल हैव टू सी एवरीथिंग, है ना। नाउ विल कम टू लेट्रोजोल। लेट्रोजोल इज ऑल्सो ओरल ओवुलेशन इंडक्शन। हमने इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया। हमेशा विल स्टार्ट विथ लो डोज, द डोज इज कैलकुलेटेड। ये क्वेश्चन आएगा, हाउ विल यू कैलकुलेट द डोज? सो डोज इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ BMI, एज ऑफ द पेशेंट एंड प्रीवियस स्टडीज, ठीक है। पहले पेशेंट ने मान लो 2.5 मिलीग्राम से शुरू किया और ओवुलेशन अचीव नहीं किया, देन वी हैव टू इंक्रीज द डोज। So dose calculation is through BMI, age and previous cycles. ठीक है। Now we have compared already with clomiphene citrate. It has high rate of monofollicular development, no direct anti-estrogenic effect on endometrium and cervix, and the most important thing is shorter half life. 48 hours में wean off हो जाता है, तो implantation तक की blood में नहीं रहेगा, तो अगर by chance कोई side effect होता है तो भी वो नहीं आएगा, okay? So there are various regimens we follow for ovulation induction. बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि generally we started with 2.5 milligram to 5 milligram dose. Up maximum we can go with 7.5 milligram dose, and we give it most commonly in 5 days. But in extended there are various regimens. So extended regimen में we can extend it to 7 to 10 days. Okay.
सो देयर आर वेरियस प्रोटोकॉल्स, आपको बस इतना पता होना चाहिए। एक्सटेंडेड रेजिमेंट्स होता है, स्टेप अप प्रोटोकॉल, स्टेप अप प्रोटोकॉल में विल इंक्रीज द डोज, स्टेप डाउन प्रोटोकॉल्स वो सब अभी आएगा, उतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो क्लोमिफेन सिट्रेट, लेट्रोजोल एंड थर्ड इज गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। सो गोनाडोट्रोपिन विल गिव when there is no ovulation with oral ovulations, or there is no pregnancy achieved, or we are combining it with IUI or IVF, ठीक है। Anybody what is IUI? So what is intrauterine insemination, how we do? ये छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए ना आप लोगों को, तभी तो आप ओवुलेशन इंडक्शन पढ़ोगे। पढ़ लेना आज, व्हाट इज, टाइम हो गया आप लोगों का। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, वी प्रिपेयर द सीमेन, ठीक है। पेशेंट विल, द मेल पार्टनर विल इजैकुलेट द स्पर्म by masturbation, okay, and we will prepare it. There are various methods of semen preparation, वो आपको इतना डिटेल में पढ़ने की। So we have to prepare the semen. It is done with centrifugation, and the prepared semen उसका पर थोड़ा सा वॉल्यूम लेते हैं। तो नॉर्मल यूट्राइन वॉल्यूम कितना होता है? यूट्रस की साइज क्या होती है? What is the norm? आज पढ़ लेना है ना, what is the normal size of uterus, यूट्राइन वॉल्यूम कितनी होती है। So we'll just insert 0.2 to 0.3 ml of prepared semen inside the uterine cavity through cervix. So there is a thin catheter that is called as IUI catheter. वो हम लोग intracervically insert करते हैं and will go inside the cavity, और बहुत ही non-invasively we will insert the semen at the time of ovulation. We'll confirm the ovulation. So what we have taken care of, cervical part, cervix हमने bypass कर दिया, तो if there is any cause of cervical infertility, जो हम अभी डिस्कस करें तो उसमें एक सर्विक्स हमारा रह गया था। सो इफ देयर इज एनी सर्वाइकल फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी, मे बी सर्विसाइटिस या एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज हैं सर्विक्स में, तो इट विल बी टेकन केयर ऑफ। और भी बहुत सारे कॉजेस होते हैं, बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं आईयूआई के। इसमें मेल फैक्टर, माइल्ड मेल फैक्टर, ठीक है, माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी अगर है या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, तो देन दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ आईयूआई दैट यू शुड नो, दैट कैन बी आस्क्ड इन वाइवा। वो उधर वाले सारे व्हाइट टी शर्ट वाले बच्चे सब मोबाइल चला रहे हैं, तो ठीक है। तो IUI we can do, and if we do not achieve ovulation, then we will escalate with gonadotrophins. And what are the indications? We have discussed mild endometriosis, mild male factor, unexplained infertility, right? Or again, gonadotrophins is the method of choice for ovulation induction in type 1 ovulation, type 1 anovulation, that is hypo में क्या होगा? FSH LH आ ही नहीं रहा है, ऊपर से ही नहीं आ रहा है, तो वी हैव टू गिव इट बाय इंजेक्शंस, करेक्ट? क्लियर हो गया आप लोगों को? दिस वी हैव डिस्कस्ड FSH और HMG. These injections we have to administrate daily. We generally start from day 2 to day 5, but again we have to monitor with ultrasound to see what is the response of ovary and to rule out what OHSS, ठीक है। अब इसमें हम लोग अगर कर रहे हैं तो फाइनली जब मैच्योर हमें लगेगा फॉलिकल मैच्योर हो गया, देन वी हैव टू ट्रिगर इट, राइट? ट्रिगर करेंगे HCG से। नॉर्मल LH सर्ज आता है ना ओव्यूलेशन के लिए, वो अभी हम आर्टिफिशियल साइकिल कर रहे हैं, टाइम भी कर रहे हैं, तो वी विल ट्रिगर इट विथ HCG, करेक्ट? HCG से ट्रिगर करेंगे जब फॉलिकल की साइज, फॉलिकल मैच्योर हो गया, अल्ट्रासाउंड से 19-20 mm का अचीव हो गया, देन वी विल ट्रिगर द ओव्यूलेशन एंड देन वी विल टाइम इट विथ IUI, ठीक है? ठीक है। इसमें भी स्टेप अप और स्टेप डाउन प्रोटोकॉल होते हैं। सो दे आर वेरियस रेजिमेंट्स, वो आप लोगों को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये टर्म पता होना चाहिए, स्टेप अप रेजिमेन, स्टेप डाउन रेजिमेन, ठीक है? क्रॉनिक लो डोज स्टेप अप प्रोटोकॉल, स्टेप डाउन प्रोटोकॉल, ठीक है? एनी क्वेश्चंस एनीवन वांट टू आस्क?